Okay. So today we will Any math solve some question based upon the next equation. equation. लास्ट क्लास में हमने नेक्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। तो आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो राइट डाउन calculate E cell, calculate E cell, E naught cell of following cell of Solution. following cells. Also write half cells as well as full cell reactions. Full cell reactions. Okay. So first question is Zn solid to Zn2 plus aqueous, and the concentration of electrolyte has been given as 10 molar. Then Ag plus aqueous 0.1 molar to Ag solid. Okay. And E naught of Zn2 plus to Zn given minus 0.76 volt, and E naught of Ag plus to Ag is given 0.8 volt. पहला क्वेश्चन है, हम लोग करके देखते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? First you write half cell reaction. एनोड पे क्या होगा? देखो एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? Zn plus 2 Zn plus 2 Ag plus is equal to no I am writing half cell reaction. Zn solid is equal to Zn2 plus okay, so this is the anode half cell reaction. Then कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पर रिजेक्शन होता है, तो राइट वाला पार्ट आपका कैथोड रिप्रेजेंट करता है। Ag plus aqueous plus electron giving the Ag solid, right? Now net cell reaction क्या हो जाएगी? Now net cell reaction में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होने चाहिए, नहीं करता, और उसको 2 से मल्टीप्लाई Ag हो जाएगा। तो it will become Zn solid plus 2Ag2 plus aqueous, sorry, Ag plus aqueous giving you Zn2 plus aqueous plus 2Ag solid, right? So these are the half cell and full cell reaction. And आप देख सकते हैं यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2, करेक्ट? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं? E नॉट सेल निकाल लेते हैं एक बार। just calculate E naught cell. E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode, and mind it, जब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लोग कैथोड और एनोड दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हैं। तो हियर स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं होता है। Ag plus 2 Ag रखना है, यहाँ पे E naught of Zn2 plus 2 Zn रखना है। ओके, दिस इज कॉपी। Okay, so what E naught of cell will be nothing but put the value 0.8 minus of minus 0.76. It will come out to be 1.26 volt, right? Now to calculate E cell, apply the next equation. To calculate E cell, apply the next equation. E naught cell is equal to RT minus
E cell E naught cell minus RT by NF ln Q. 0.0 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग 0.06 ले लेंगे उसको, 0.059 को हम लोग 0.06 लेके सॉल्व कर लेंगे बाई 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे Q लिखना होता है, Q में ऊपर क्या आएगा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2+ आएगा, आप इक्वेशन से देख सकते हैं, नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर है, E naught cell is 1.56 volt minus this will become 0.03 log of Zn 2+ का कंसंट्रेशन दे रखा है 10, Ag प्लस का दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, राइट, सिंपलीफाई कर यानी कि 1.56 minus 0.09 इनटू ये 10 to the power 1 है, 10 to the power -1 है, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, it will become 3, 10 to the power 3, तो 0.09 0.09 it will become 1.47. Understand? हाँ, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और आपके जेई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इवन एडवांस में भी आ सकते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप सेल रिएक्शन लिखो, फुल सेल रिएक्शन लिखो, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो, फिर ई सेल की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके निकालना है, हाँ, डन, हाँ सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी, हाँ सर, हाँ, ओके, do the next question, same question same है, let us take the next cell that is Cu solid 2 Cu SO4 F plus and concentration has been given 2 molar, right? Then we have AgCl saturated solution. We know कि AgCl precipitate बनाता है, हाँ, तो उसका saturated solution है हमारे पास, to Ag solid and इसका KSP दे रखा है 10 to the power -10 and E naught of Cu2 plus 2 Cu is 0.34 volt and E naught of Ag plus 2 Ag solid is 0.8. Same question is there. So ट्राई करो एक बार, यहाँ पे आपको देखना होगा इस डेटा को कैसे यूज करना है, एक बार ट्राई करो, डन,
हाँ इस पहले बताओ इस डेटा को कैसे यूज किया आपने? मैंने इसमें CuSO4 को बेसिकली CO2 नहीं CO2 प्लस ही मान लिया था। दैट इज ओके, लेकिन यहाँ पे इससे आप क्या निकाल रहे हैं, इसके हेल्प से क्या निकाल रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन KSP के हिसाब से हम वो निकाल क्या बोलते हैं कितना क्या हाँ निकाला इसके हेल्प से मैंने हम लोग KSP से कुछ नहीं। एजी प्लस का आयंस कंसंट्रेशन को कितना निकाल लेंगे। सोल्यूशन में कितना है, सोल्यूशन में कितना है सोल्यूशन वो। में एजी प्लस का कंसंट्रेशन कितना है वो निकाल लेंगे इसके हेल्प से हम लोग। हाँ वही बोल रहा था। तो मुझे एजी प्लस चाहिए, वो इसके हेल्प से मुझे मिल जाएगा, राइट? हाँ चलो ट्राई करो। अदरवाइज क्वेश्चन सेम है, बस इस डेटा को कैसे यूज करना है पता होना चाहिए। With the help of this data, I will calculate the concentration of Ag plus, right? हाँ मैंने ई नॉट सेल अभी तो ई नॉट सेल पर हूँ। माइनस फोर सिक्स Okay. Let us see. 10 to the power minus 5 सर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 5 आएगा ना। That is okay. Okay, let us see. Okay. So first of all, I will calculate the concentration of Ag plus. I know that AgCl solid ये इस तरीके से डिसोसिएट होकर रहता है। Ag plus plus Cl minus Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. लेट अस से AgCl का सॉल्युबिलिटी है S, तो इसका भी कंसंट्रेशन S हो जाएगा, इसका भी S हो जाएगा। Then Kc is equal to S into S S square or minus 10 is equal to S square.
10 to the power minus 5 आ जाएगा. 10 to the power minus 5. So this is the concentration of Ag plus. Now let us write down the reactions. NOH पे क्या हो रहा है? NOH पे ऑक्सीडेशन होता है. Cu solid to Cu2 plus aqueous plus 2 electron and cathode पे रिजेक्शन होगा. Ag plus aqueous plus electron giving you Ag solid. Next reaction. उस सब में ये सब मेरा हो गया. एंड में मेरा आंसर आया 0.31 minus 0.03 log 2. 0.31 कैसे आ गया? नहीं, वो 0.31 minus 0.03 log 2. तो log 2 का वैल्यू आपको नहीं पता? log 2 का वैल्यू तो log पता होना चाहिए ना कम से कम भाई. 0.3 होता है log 2. 0.3. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैच कर लेना अपना. नेक्स्ट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? देखो इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल रिएक्शन में अपीयर नहीं होने चाहिए. Cu solid plus 2Ag plus aqueous giving you Cu2 plus aqueous plus 2Ag solid, right? Now E naught cell निकाल लो. E naught cell is equal to E naught of cathode, that is nothing but Ag 2Ag minus E naught of anode, that is nothing but Anode Cu plus Cn. Cu. This is 0.8. This is minus 0.34. This will be 0.46. 0.464, right? हाँ अब नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके ये सब निकाल लो बस. हाँ वही किया मैंने. एंड में बस शायद से E cell is equal to कैलकुलेशन. E naught E cell cell 0.46 minus minus 0.06 by 2 by 2 by log 2 of ऊपर होगा 2 by 10 to the power minus 5. नीचे होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus का स्क्वायर, राइट? ये सही लिखा कि नहीं? ये हाँ मैं स्क्वायर नहीं किया. अरे जब 2 है तो स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे? हर बार में गलत. 0.46 minus 0.03. केयरफुली करना है. डोंट बी क्वेश्चन करते हैं दिमाग को पीसफुल रखना. ये 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 2 मोलर दे रखा है. ये 10 to the power minus 5 का स्क्वायर. स्क्वायर. अब सिंपलीफाई करना है बस. 0.46 minus 0.03 and this will be log 2 and this will be nothing but plus 10, right? So this will be nothing but 10 to the power 10. So log 10 to the power 10 is equal to 10 कर. अब इसको सिंपलीफाई कर लो. 46 minus 0.03 into log 2 का वैल्यू होता है 0.3 minus 0.3. करेक्ट. हाँ अब सिंपलीफाई कर लो. 0.46 minus 0.009, right? Minus 0.3. So this is 0.46 minus 0.309. Subtract it. 1 and 5. 0.151. 0.151 more, right? करेक्ट. हाँ लॉग की कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. लॉग 2 इक्वल होता है 0.3. log 3 इक्वल होता है 0.48. log 5 is equal to 0. I think 7. एटलीस्ट 3 वैल्यू याद होनी चाहिए. वो ज्यादा यूज नहीं होता ना आजकल. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया रहता है इसलिए याद. तो भी एटलीस्ट बेसिक वैल्यूज हैं याद होनी चाहिए. हाँ ठीक है. 0.3 0.48 0.7. हाँ सर. ओके डन. हाँ सर. क्वेश्चन ऑन करो अभी. राइट डाउन द क्वेश्चन. At what concentration of Cu2 plus? At what concentration of Cu2 plus ion reduction potential of Cu2 plus 2Cu half cell becomes 0. It is given E naught of Cu2 plus 2Cu
इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। सही करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम्म, 2 plus is serious. Standard reduction potential 0. Sir, 10 बोला 10 बोला, 10 to the power minus 11 आएगा भाई। चलो देखते हैं। 10 to the power minus 11. लेट्स सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला था नेक्स्ट 0.03 क्वेश्चन देखो। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना है। एक गलती कर दिया, बार गलती कर देता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे हाफ सेल, तो हाफ CO2 सेल plus 2 electron, CO2 plus 2 electron is CO solid. हाफ सेल रिएक्शन nothing but Cu2 plus F plus 2 electron giving you Cu solid. Now write down the expression. E cell is equal to E naught cell minus 0.06 by 2 log of CO. log of 1 upon concentration of Cu2 plus, right? 1 by 1 by Okay. Reaction quotient 1 by ये सब 1 by क्यों कर रहे हो भाई? रिएक्शन क्वोशिएंट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना। हाँ भाई यार डूइंग सच मिस्टेक। minus 0.03 log of 1 upon concentration of Cu2 plus। ठीक है, ई सेल को बोला 0 बनाना है, करेक्ट। देखो अभी क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। तो 0 इज इक्वल टू 0.34 minus 0.03 and this will be nothing but this will be plus and log of Cu2 plus, correct। CO2 plus थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 0. log of Cu2 plus कितना आ गया, माइनस 0.34 डिवाइडेड बाई 0.03, राइट। and it will be approximately -11, करेक्ट। हाँ तो यहाँ से आपका कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 plus 10 to the power -11 हो जाएगा। 10 to the power minus 11. That's it। पहले वो गलती किया था, 0.03 की जगह 0.3 ले लिया। तुम फिक्स क्यों करते हो भाई? आराम से थोड़ा सा माइंड को स्टेबलाइज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। हाँ सर, डन। हाँ सर, लिख लिया। हाँ, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
calculate oxidation potential of Zn solid to Zns saturated solution and Ksp had been given 10 to the power minus 30. Okay, E naught of Zn2 Zn2. माइंड इट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपको, वो निकालना भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है ना? देखो ना मैंने क्या लिख रखा है, Zn2 पर लिख रखा है मैंने, हाँ एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही वैल्यू ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपको ऑक्सीडेशन ही निकालना है, हमें ऑक्सीडेशन का ही वैल्यू दे रखा है। चलो ट्राई करो। minus S plus S. Done? हाँ सर, बस कैलकुलेशन बाकी है। No 0.76 plus 0.45. 1.21. यस करेक्ट, सही है। एक बार सॉल्यूशन में लिख देता हूँ जल्दी से, देख लेना तो मिस्टेक हो तो आप मैच कर सकते हैं। आंसर इज करेक्ट। सबसे पहले रिएक्शन लिखना होता है, राइट डाउन द रिएक्शन। Zn. अब इसका कंसंट्रेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, इसका कंसंट्रेशन के लिए ये दे रखा है। सो Zn सॉलिड इक्वल टू Zn2 प्लस aqueous plus S2 minus aqueous. Let us say solubility of Zn is S, तो इसका कंसंट्रेशन भी S हो जाएगा, इसका भी S हो जाएगा। नो Ksp इक्वल टू S स्क्वायर, राइट? हाँ, 10 to the power minus 30 is equal to S square. यहाँ से S आप कितना आ गया, 10 to the power minus 15, and that is equal to the concentration of Zn2 plus, right? हाँ सर। So just apply the next equation. Right? मैंने बताया था नेक्स्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए एप्लीकेबल होता है, फुल सेल के लिए एप्लीकेबल होता है। E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नथिंग बट E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.06 by 2 log of concentration of Zn2 plus, right? हाँ, 0.76 minus 0.03 log of 10 to the power minus 15, 0.76 minus 0.03 into minus 15, 0.76 plus 0.45, sum them up to come out to be 1.21, right? हाँ, Done? हाँ सर। Okay.
Next, we will calculate the oxidation and rejection potential of standard hydrogen electrode. Oxidation potential and rejection potential of standard hydrogen electrode. SHE. तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर, आपने तो बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो जीरो मानते हैं। दोनों ही जीरो होते हैं, तो कैलकुलेट क्या करना है? हाँ बताइए। इसमें स्टैंडर्ड, यस, हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिजेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मानी थी। हाँ तो पॉइंट फिर मुझे पता है कंसंट्रेशन के साथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिजेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। हाँ बिगिनिंग में लिखा है तुमने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाँ कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है, और नेक्स्ट इक्वेशन एक्चुअली क्या है? हाँ दैट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। तो स्टैंडर्ड की वैल्यू जीरो होती है, बाकी किसी और कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन SHE एज ए एनोड बिहेव करता है। SHE एज ए एनोड, तो रिएक्शन क्या होगी देखो, H2 गैस टू 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब लिख लेते हैं हम लोग एक्सप्रेशन नेक्स्ट इक्वेशन का, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो जीरो होता है, फिर जीरो हो गया माइनस 0.0591। अब एक यदि हम इस 2 को बाहर लेके आ जाते हैं, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। नो मुझे पता है कि माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पीएच होता है, राइट। 1 तो इसको 0.0591 इंटू पीएच देख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे आपको नीचे प्रेशर ऑफ H2 तो लिखना पड़ेगा। हाँ प्रेशर इसमें डिपेंड करता है। यस, नहीं आपको हमेशा रिएक्शन कोएफिशिएंट के एक्सप्रेशन में प्रेशर भी तो लिखना होता है गैस का। हाँ जब भी गैस होता है तो गैस होता है प्रेशर तो उसका लिखते हैं। प्रेशर को भी लिखना होता है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी। नाउ E of oxidation potential is equal to minus 0.051 upon 2 log of concentration of H plus का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन ना। एज्यूम कर लेते हैं कि प्रेशर ऑफ H2 जैसे 1 atm है, 1 atm और 1 बार है, जो कि हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तब E ऑफ ऑक्सीजन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो गया, एंड इस 2 को आप बाहर लेके आ जाओ, ये जगह माइनस 0.0591 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। नाउ माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पीएच होता है, तो E ऑफ ऑक्सीजन पोटेंशियल इज नथिंग बट 0.0591 इनटू पीएच। माइंड ये कब है? जब मैंने प्रेशर को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज्यूम 1 बार का एज्यूम और राइट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इधर से हम लोग pH ऑफ द सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, पीएच गिवन है तो आप ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन पोटेंशियल दे रखा है तो पीएच निकाल सकते हैं, राइट।
तो हम लोग ये क्यों नहीं यूज करते पीएच निकालने में? अरे पीएच का भी कोई फार्मूला थोड़ी ना है, मैंने ऑक्सीजन पोटेंशियल को पीएच के लाइक टर्म में लिख दिया। पीएच निकालने के लिए तो बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं हम लोग, ये क्यों नहीं यूज कर लेते? अब इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, वो हाँ निकालना और डिफिकल्ट है। पहले सेल बनाओ, तो कोई हाँ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना उतना आसान काम थोड़ी ना है। सेल का पोटेंशियल निकालना बहुत इजी है, लेकिन किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए पहले आपको उसका सेल बनाना पड़ेगा किसी के साथ। जिसके साथ सेल बना रहे हैं हाँ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, राइट। हाँ हाँ सर। चलो, नाउ व्हेन SHE behave as a cathode, SHE at cathode, कैथोड का बिहेव करेगा तो E ऑफ रिजेक्शन माइनस पोटेंशियल जीरो होता है पॉइंट जीरो फाइव नाइन माइनस E ऑफ वन ऑक्सीजन पी पोटेंशियल एच। होता है हाँ माइनस 0.059 इनटू किया जाएगा। निकाल के देखना चाहें तो आप सारी रिएक्शन को उल्टा लिख के निकाल सकते हैं। तो हाँ, जैसे वो से माइनस जीरो हो जाएगा, फिर एंड में जाके पीएच के लिए माइनस करना पड़ेगा। ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो इसको एक बार हाँ घर पे कर लेना, लिख के देख लेना एक बार। चलो, हाँ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द concentration cells. हाँ सर। कंसंट्रेशन सेल का एक बहुत ही खतरनाक मीनिंग होता है, सुना है कि मैंने अपने हिस्ट्री पढ़ा है कभी? हाँ, में हिटलर का टाइम पढ़ा नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी। तो कंसंट्रेशन सेल का मतलब पता है, बहुत सारे लोगों को एक रूम में बंद करके एक साथ मार एक, दिया। हाँ तो नहीं, यहाँ पे हाँ कॉन्सेंट्रेटेड कैंप्स था, वो कंसंट्रेशन कैंप्स था। हाँ, तो यहाँ पे इस- उसको यदि सेल बनाना है, सेल मतलब बोल सकते हैं यू कैन टेल सेल, शेल मीन्स होता है कोई रूम, यस ब्लॉक। कुछ कैसे यस। तो यहाँ पे वो कंसंट्रेशन सेल नहीं है ना, दैट इज वेरी हाँ हॉरिबल। कितना खतरनाक है, मतलब पर्सन कैन बिकम सो क्रूअल है कि हाँ एक साथ लोगों को लाके पूरा खत्म कर दो। एनीवे, सो कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, इसमें जो एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल के बने होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट भी दोनों में सेम होता है। हाँ। एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के बने होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है। बस आइदर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाता है दोनों में, और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन दोनों में अलग अलग हो जाता है। So the cells in which anode and cathode are made of the same material, but the concentration of either electrode or electrolyte is different in anodic and cathodic compartment. So such cells are known as concentration cells, right? सेम मटेरियल यानी कि सेम एलिमेंट, Zn2 हाँ, प्लस और Zn2 प्लस। यस 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 यस। हमने पढ़ा तो देखो कि जो ई सेल है वो मटेरियल पे तो डिपेंड करते ही है, साथ में कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो सिंस यहाँ पे हाँ मटेरियल सेम है हाँ लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो उस हाँ। कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से उस सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। अच्छा। बात समझ आएगी नहीं? हाँ सर। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, cells in which anode and cathode are made of the same material. Anode and cathode are made of same material. With the concentration of either electrode or electrolyte, but the concentration of either electrode or electrolyte are different in anodic and cathodic compartment, and the concentration of electrode, either electrode or electrolyte or both,
either electrode or electrolyte or both are different in anodic and cathodic compartment. Right? Now, depending upon whether the concentration of electrode is different or concentration of electrolyte is different, there are two types: electrolytic concentration cell and electrolytic concentration cells or electrode concentration cells. सर इसमें कंसंट्रेशन सेल में अगर ये क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन से में पर इलेक्ट्रोलाइट ही डिफरेंट है तो उसको कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम इलेक्ट्रोलाइट को तो अलग कर ही नहीं सकते ना, हमारा जो मेटल होता है उसी का सोल्यूबल सॉल्ट को हम लोग एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि अगर CO है तो एक जगह CuSO4 और एक जगह CuCl2। ये किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे क्या Ce2+ से मतलब होता है। काउंटर एनायन कुछ भी हो सकता है, दैट इज सेम ओनली, उसको अलग नहीं माना जाता। मेटल आयन के चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा। चलो, so first we will discuss about the electrolytic concentration cell. Electrolytic, हाँ, now mind it, कोई भी कंसंट्रेशन सेल हो, मुझे पता है E0 सेल हमेशा उसका जीरो होगा क्यों? बिकॉज यदि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो स्टैंडर्ड रिड्यूस E0 कहाँ सेल होना है? हमेशा जीरो होगा, राइट? हाँ। बट E0 का मतलब क्या है? आपने कंसंट्रेशन भी सेम कर दिया ना, कंसंट्रेशन सेम कर दिया, अब सब कुछ सेम ही कर दिया, तो कहाँ से पोटेंशियल जनरेट होगा? हाँ, ठीक है, E0 cell will always be zero in the case of concentration cells, right? So first we will discuss about the electrolytic concentration cell. ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है ना? No, this is galvanic cell only. That there is a difference in the concentration of electrolyte. So concentration of electrolyte are different in anode and cathode. Okay, just take one example. Just we have Zn solid to Zn 2 plus aqueous. Assume कर लेते हैं इसका concentration है C1. Salt bridge Cu2 plus aqueous. Let's just say इसका concentration है C2 to Cu solid. इस सेल को बना लेते हैं एक बार. Okay. So here I have Zn solid. Here I have Cu solid. Here I have ZnSO4 at concentration. Let us say ZnSO4 concentration, and let us say C1. Here I have let us say Cu/4 concentration C2. They are connected with a wire. This is Cu solid, and this one is Zn solid. This is anode, negatively charged, cathode, positively charged, and both cells are connected with a porous plug. Either we can apply salt bridge or we can connect them with a porous plug.
the function of both are same. Okay, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाओ तो चलेगा ना? हाँ सॉल्ट ब्रिज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम बोथ आर सेम. कॉपी. एक सेकंड. डन. हाँ सॉरी. हाँ डन. ओके, ना कोई भी सेल गिवन है आपको, उसका एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है पता होना चाहिए, कैथोड पे क्या हो रही है पता होना चाहिए, नेट सेल रिएक्शन पता होना चाहिए, सेल नोटेशन पता होना चाहिए, और उसका नेक्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना होना चाहिए. एक बार इतना आता है मतलब आप सेल के बारे में कंप्लीट नॉलेज. तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है यहाँ पे, जजन सॉलिड 2 जजन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसका कंसंट्रेशन है C1, जो कि मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज दिस इट इज द कंसंट्रेशन ओनली जो कि डिफरेंट है, अदरवाइज बाकी सब तो सेम है. ओह आई एम वेरी सॉरी, मैंने तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के मटेरियल ही अलग अलग ले ली, थोड़ा सा पीछे जाना. हाँ वही मैं सोच रहा था. यू वुड हैव आस्क्ड दिस, आई मैंने ध्यान ही नहीं दिया. मेरे को लगा कि SO4 इलेक्ट्रोलाइट का एक सेम टाइप है. नहीं, तो आपने यहाँ तो कंसंट्रेशन सेल बचा ही नहीं फिर ये. कंसंट्रेशन सेल का डेफिनेशन ही होता है कि आपको मटेरियल सेम लेने हैं. आई एम वेरी सॉरी, इसको चेंज करना है, यहाँ पे Zn2+ लिखना है इसको. CO2+ को Zn लिख देता हूँ. जहाँ जहाँ पे हेलो. Cu है वहाँ पे Zn लिख दो बस, और कुछ नहीं. हाँ. राइट. हाँ. ओके, नाउ सी एनोड पे क्या हो रहा है, Zn सॉलिड तो Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन इज C1. कैथोड पे क्या हो रहा है, Zn2+ एक्वस, कंसंट्रेशन इज C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, giving you Zn solid. What will be the net reaction? Since these concentration are different, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन ये कैंसिल हो जाएंगे. तो Zn2+
aqueous C2 to Zn2 plus aqueous C1, राइट। सेल नोटेशन क्या हो जाएगा? सेल नोटेशन इज नथिंग बट Zn is solid to Zn2 plus aqueous, concentration is C1, salt bridge Zn2 plus aqueous, concentration is 2, सेल नोटेशन और लिख लिया ऑलरेडी। Zn solid, right? Oh, cell notation तो मैंने सेल आपको नोटेशन दिए correct. Now next write the expression of next equation. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, log of reaction quotient product divided by reactant. Product क्या है? Concentration of Zn2 plus aqueous. Now C1 is nothing but it is the concentration of NO, correct? इसको मैं A लिखूंगा अपॉन Zn2 plus aqueous C2 is nothing but cathode, इसको C लिख दूंगा, राइट, या NO या कैथोड लिख सकते हैं, करेक्ट, राइट। E सेल की वैल्यू तो 0 होगी, सॉरी E नॉट सेल की वैल्यू तो 0 होगी, ओके। अब क्या करो, इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, ये कॉपी कर लिया। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? E सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ऊपर कैथोड हो जाएगा, नीचे तो नीचे एनोड, right? Okay. Now for spontaneous cell reaction, E cell should be greater than 0, and for E cell to be greater than 0, the value of cathode should be greater than value of anode. So it means the concentration of anodic compartment should be, sorry, cathodic compartment should be greater than concentration of anodic compartment, because लॉग के अंदर जब 1 से वैल्यू बड़ी होती है तब पॉजिटिव आता है लॉग, करेक्ट। Is it done? एक सेकंड लिखा। सर लिख लिया। Okay, let us take one more example. Example 2, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लेते हैं, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लेते हैं। बिकॉज वर्ड स्टैंडर्ड लगा दूंगा तो कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो एनोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बना है और कैथोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही बना है, राइट। So here I have H2 gas at, let us say, 1 bar pressure. Since the concentration of electrodes should be same, so यहाँ पे H2 का प्रेशर हम दोनों में सेम रखेंगे, because we are discussing electrolytic concentration cell. तो मुझे केवल इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को अलग अलग करना है, इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन को सेम रखना है। तो लेट अस से यहाँ पे भी लेट अस से ये 1 बार प्रेशर पे है, and then we have HCl over here, HCl aqueous, इसका कंसंट्रेशन लेट अस से C1 है,
यहाँ पे लिखते हैं H2 गैस at 1 bar and HCl aqueous concentration C2. Here I have platinum wire and platinum foil. Then connect them using a solder bridge. Clear? This is anode and this is cathode, positively charged. Then लिखिए। okay. Now देखते हैं नोट पे क्या रिएक्शन होगी। H2 gas at 1 bar pressure giving you 2H plus, of course concentration is C1 plus 2 electron। कैथोड पे क्या होगा 2H plus aqueous, concentration at C2 plus 2 electron giving you H2 gas at pressure 1 bar। एक्सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सिंस यहाँ पे प्रेशर बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। करें इट विल बी 2H plus aqueous C2 giving you 2H plus aqueous C1, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H plus aqueous C2 to H plus aqueous C1, लेकिन तब n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, राइट। करेक्ट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यदि इसको लिखना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। यानी कि इसका 2 वैल्यू आएगा यहाँ पे। वैल्यू सेम ही आएगा। अब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक ही इन्वॉल्व होगा। देखो ना यहाँ पे, यदि मैं H प्लस लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हाफ लिखूंगा, यदि यहाँ पे हाफ लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन 1 ही आ जाएगा। अच्छा, H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, कुछ भी करो वैल्यू एक ही आएगी। तो मेरे को चेंज थोड़ी ना करना, मैं तो बस उसको कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिया। तो अल्टीमेटली इक्वेशन में जाके वो स्क्वायर बाहर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा।
कॉपी सर एक सेकंड। हाँ सर, सेल नोटेशन क्या हो जाएगा देखो, Pt solid H2 gas at 1 bar to H plus aqueous concentration C1 H plus aqueous concentration C2 H2 gas 1 bar Pt, right? हाँ No, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 n की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, so log of concentration of H plus, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एनोज वाला है, करेक्ट? हाँ राइट हैंड साइड में C1 है कि नहीं? हाँ स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड का स्क्वायर, राइट? एनोड सेल की वैल्यू तो 0 होती है, ई सेल क्या बन गया, ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग प्रेशर भी लिखेंगे बट प्रेशर सेम है तो कैंसिल आउट, प्रेशर लिखने की जरूरत ही नहीं, पहली बात हमारे एक्सप्रेशन में प्रेशर आएगी, हमारे नेट सेल क्वेश्चन में प्रेशर है ही नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज जो सेम थे इसीलिए नहीं है, हाँ ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ना। हाँ हाँ, यहाँ पे तो हम लोग को नेट सेल रिएक्शन से जो Q का वैल्यू आए उसी को लिखना है बस, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इज इक्वल टू, अब इस 2 को बाहर ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.0591 log ऑफ concentration of H plus NO upon concentration of H plus cathode। एक बार इस नेगेटिव को अंदर लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा देखो, 0.0591 log ऑफ concentration of H plus cathode ऊपर पहुंच जाएगा एंड concentration of H plus anode नीचे आ जाएगा। यदि मैं इसको pH के टर्म में लिखना चाहूँ तो देखो, E cell is equal to 0.05, एनोड का pH माइनस एनोड का pH माइनस हाँ कैथोड का एनोड में pH। तो ऑलरेडी माइनस टर्म इंक्लूड हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस नहीं तो माइनस और माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, राइट? हाँ Now for spontaneous cell reaction, E cell should be greater than 0, हाँ means concentration of H plus on the cathodic compartment should be greater than concentration of H plus in the anodic compartment, हाँ or we can say pH of anode should be greater than pH of cathode। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा ऑब्वियसली उसका pH कम होगा, राइट? हाँ तो देखो हमारा प्रीवियस एग्जांपल में भी सेम रिजल्ट आया था, कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट से ज्यादा होना चाहिए। हाँ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कैथोडिक कंपार्टमेंट पे इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता है और एनोडिक कंपार्टमेंट में वो जनरेट होती है। जाता है। हाँ, फिर कैथोड में ज्यादा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जैसे कैथोड में कंज्यूम होता रहेगा एंड इलेक्ट्रोड एनोड में वो प्रोड्यूस होता रहेगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब वहाँ पे सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, राइट? हाँ सर। और अगर कैथोड का एनोड से ज्यादा, तो इधर तो वो भी हो सकता है ना कि कैथोड एनोड जैसे बिहेव कर ले लगे। यस यस एग्जैक्टली, सही, तब आपका कैथोड एनोड बन जाएगा और एनोड कैथोड बन जाएगा, हाँ सर। राइट? हाँ, कंसंट्रेशन सेल का पर यूज क्या होता है?
यूज जो सेल का होता है वही कंसंट्रेशन सेल का यूज कर सकते हो। यानी कोई डिफरेंट नहीं है। यूज तो वही है, हम लोग सेल पोटेंशियल डिराइव कर रहे हैं। अच्छा, हाँ सर लिख लिया। एक ही इलेक्ट्रोड की हेल्प से आप सेल पोटेंशियल डिराइव कर ले रहे हो, देखो। हाँ चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड आर डिफरेंट। कंसंट्रेशन ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर दोनों एनालॉगस टर्म होते हैं। गैस के केस में हम लोग उसी को प्रेशर बोलते हैं, सॉल्यूशन केस में कंसंट्रेशन, राइट। इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट। नाउ देखो, यदि मेटल का इलेक्ट्रोड बना है तो मेटल तो सॉलिड स्टेट में होता है, उसका हाँ। कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड में आपका जो गैस है वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, और दो कंपार्टमेंट में आप गैस के प्रेशर को वेरी कर दो। समझ दो पॉइंट। हाँ हाँ देखो मेटल तो सॉलिड होते हैं, एंड सॉलिड के कंसंट्रेशन को आप कैसे चेंज करेंगे, वो तो कांस्टेंट ही रहता है ना। हाँ यहाँ पे भी कांट हाँ यूज द मेटल मेटल आयन सेल, यहाँ पे मुझे गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड यूज करने पड़ेंगे, राइट। हाँ अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड आर डिफरेंट, और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, उसका कंसंट्रेशन भी सेम है। तो अभी उनको दो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेम इलेक्ट्रोलाइट और सेम कंसंट्रेशन, तो उनको चाहे मैं अलग अलग रखूं चाहे सेम ही कंपार्टमेंट में रखूं, बात तो एक ही है। हाँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को एक ही कंपार्टमेंट में रख देंगे और उसी में मैं दोनों इलेक्ट्रोड को दबा दूंगा। दोनों इलेक्ट्रोड को इसी में दबा दूंगा, बिकॉज सेपरेट करने का कोई मतलब ही नहीं। सेम इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन भी सेम, तो आप सेपरेट करके क्या ही करेंगे उनको। हाँ। ओके, यहाँ से H2 हाँ गैस HS से मैं P1 बार पे पास कर रहा हूँ, बिकॉज प्रेशर अभी अलग अलग लेना है। जैसे H2 गैस HS से निकल रही है P2 बार में। ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ पे मैंने HCl ले रखा है इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। हाँ सर। कॉपी। एक सेकंड।
हाँ सर कॉपी। ओके, now let us write down the cell reactions. नोट पे ऑक्सीडेशन होगा, H2 gas at T1 bar pressure converting into 2H plus equals plus 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर रिजेक्शन होगा, टू एच प्लस एक्वस plus 2 electron giving you H2 gas at T2 pressure. Now H plus aqueous कैंसिल हो जाएंगे, नेक्स्ट सेल रिएक्शन क्या होगी, H2 gas at T1 giving you H2 gas at T2, राइट। हाँ सेल नोटेशन क्या हो जाएगा, T3 solid H2 gas at T1 bar H plus aqueous, एंड यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे बिकॉज सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड हाँ सर ही इलेक्ट्रोड में पड़े हुए हैं, तो बस एक वर्टिकल लाइन फिर से लगा दो, एंड H2 गैस T2 बार T3 सॉलिड, राइट। इसका तो इलेक्ट्रोड कॉमन है दोनों में, राइट। हाँ Now E cell is equal to nothing but E naught cell minus 0.0591 upon N की वैल्यू यहाँ पे 2 है, राइट। हाँ 2 mole of electron are involved in the cell reaction upon 2 log of pressure of H2 and this is P2. P2 means cathodic compartment हाँ upon pressure of H2 anodic compartment, right। E cell फिर तो 0 होती है, तो क्या बन गया, E cell इज इक्वल टू माइनस को अंदर लेके चले जाओ, 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ PH2 एनोड ऊपर पहुंच जाएगा हाँ अपॉन PH2 कैथोड नीचे। ओके, हाँ now for spontaneous cell reaction, for spontaneous cell reaction E cell is greater than 0, it means what, लॉग के अंदर वाला वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए तभी तो greater than 0 है, it means what? PH2 anode should be greater than PH2 cathode। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल का उल्टा आ गया रिजल्ट, यहाँ पे एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। लॉजिकल भी है बिकॉज जब हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो एनोड साइड में इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट कैथोड साइड में कंज्यूम होता है। बात समझ आई? हाँ सर कॉपी कर लो। हाँ सर लिख लिया। ओके, नाउ यहाँ पे यदि मैं Cl2 गैस ले लेता हूँ, Cl2 गैस एंड इलेक्ट्रोड लेता हूँ, तब क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा बिकॉज Cl2 केस में देखो Cl2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पे एनोड साइड में रिएक्शन क्या होगी,
एनोड साइड में रिएक्शन होगी 2Cl माइनस एक्वस गिविंग यू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड साइड में रिएक्शन क्या होगी, जैसे P1 प्रेशर पे है, कैथोड साइड में भी Cl2 गैस एट P2 प्रेशर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 2Cl माइनस एक्वस, राइट। हाँ तो इसीलिए अब क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपका इक्वेशन उल्टा हो जाएगा। Cl2 गैस P2 से Cl2 गैस P1 मिल रहा है, राइट। हाँ तो इसीलिए अब इधर में कंडीशन क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस के लिए, और स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन P1 should be greater than P2. PCl2 कैथोड शुड बी ग्रेटर देन PCl2 एनोड, राइट। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ थोड़ा ध्यान देना इसमें, कई बार यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। तो आपको तो इक्वेशन लिखना है, उसके बाद डिसाइड करना है, करेक्ट। हाँ ओके क्लियर। सर एक सेकंड। हाँ सर लिख लिया। ओके नाउ केस 3 जैसे मैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग कर देता हूँ। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, बट हम लोग कर सकते हैं ये वेरिएशन। if concentration of both electrode and electrolyte are different। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गैस गैस आयोन ही यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मेटल यूज कर लूंगा तो मैं इलेक्ट्रोड को डिफरेंट नहीं कर पाऊंगा, राइट। सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का हाँ सर। कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है, इसलिए आपको दो अलग अलग कंपार्टमेंट लेने पड़ेंगे। हाँ So we'll have to take two separate compartments। ओके, तो यहाँ से H2 गैस ओके H2 गैस जैसे P1 प्रेशर पे है, यहाँ पे H2 गैस जैसे P2 बार पे है। Here I have let's say HCl aqueous at C1 concentration। Here let's say I have HCl aqueous
at C2 concentration. This is your salt bridge. This is anode negatively charged, cathode positively charged. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, सेम एक्सप्रेशन लिखना है, उससे जो भी एक्सप्रेशन आ जाए बस दैट्स इट। तो देखो एनोड पे क्या होगा, H2 gas at P1 giving you 2H plus aqueous at C1 plus 2 electron। कैथोड पे क्या होगा, 2H plus aqueous at C2 plus 2 electron giving you H2 gas at P2, राइट। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ना H प्लस और H2 दोनों ही कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज कंसंट्रेशन अलग अलग है। H2 गैस P1 plus 2H plus aqueous C2 giving you H2 gas P2 plus 2H plus aqueous C1, राइट। कॉपी कर लो इसको। क्लियर, एक सेकंड। हाँ सर लिख लिया। okay, now E cell will be nothing but E naught cell minus 0.0591, n की वैल्यू 2 है, log of log of, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में, एनोड का है करेक्ट, हाँ और प्रेशर कैथोड का है, P2 है ना राइट हैंड साइड में, हाँ प्रेशर ऑफ H2 कैथोड अपॉन नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड दे सर रखा है, H प्लस स्क्वायर। यस सॉरी स्क्वायर, एंड प्रेशर ऑफ एनोड दे रखा है करेक्ट। ये तो जीरो होता है, माइनस को अंदर ले लो तो उल्टा हो जाएगा वो। log of concentration of H plus cathode का स्क्वायर, pressure of H2 anode upon concentration of H plus anode का स्क्वायर into pressure of H2 cathode, राइट। हाँ अब यहाँ पे इन दोनों के प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे आपको जनरल कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, ये प्रोजेक्ट इससे ज्यादा है तो कल करेक्ट। हाँ ओके, तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।
एंड बी रेडी फॉर टेस्ट ऑन संडे। संडे। तो टेस्ट पेपर भेज दूंगा, अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट संडे को 12 AM तक सबमिट हो जाना चाहिए बस। 12 AM यानी रात में ना? हाँ, रात 12 AM तक सबमिट कर देना आप अपने ओके अकॉर्डिंगली। सर। मैं मॉर्निंग में मोस्टली भेज दूंगा। हाँ ठीक है। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इन सब इक्वेशन को आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे इनको ना। इसको जैसे थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसमें इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो अगर लिख लिख के नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप क्या है, इसको याद भी नहीं रख पाएंगे, एंड क्वेश्चन आएगा तो आप बिगड़े हो जाएंगे कैसे करना है। यहाँ पे मैं कर रहा तो हूँ तो लिख आपको लिख के इन द सेंस, ये सब जो इक्वेशंस है वो सब लिखो ना। हाँ, एक बार आप सर एक्सेल में। बाद इनको खुद से पूरा लिखना है आपको। हाँ तब आप क्या है, आपका एक बार लिखने का प्रैक्टिस पड़ जाएगा, तब आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें लिख पाएंगे। बिकॉज हर एक क्वेश्चन में आपको सेम चीज करना है, नोट का रिएक्शन, नेट रिएक्शन, सेल नोटेशन एंड ई सेल का एक्सप्रेशन, यही करना होता है। तो लिख लिख के हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बिकम कंफर्टेबल, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर।